Good evening, everyone. Welcome to chemistry paper. Like in this, you have already given your best shot for the physics, and now you are supposed to prepare properly for the chemistry. So, since you are already in a momentum of your preparation, so we are just boosting up whatever you have done till now for your prelims exams, whatever notes you have referred. If someone has referred a precise book for a particular chapter, or if you have referred a teacher's notes for a particular chapter, you have made some handwritten notes for yourself, you should follow that only. First strategy is that don't try to learn any answer from any other book. Whatever answer you have learned from a textbook, you should do it from the textbook. If you have learned that answer from the notes, then do it from the notes. If you are doing it from the precise book, any particular answer or a chapter or a concept, do it from the precise book. Okay. And if you are referring MCQs ke liye, you should do all textbook MCQs. All textbook MCQ should be done. And along with that, if you still you have time and you want to practice some MCQs, you can do it from the 21 or you can do it from the precise book also. It is absolutely fine. Yeah. So we are coming now to the main part. What you have to study, that we said that whatever answers you have learned it from the textbook and notes, you have to refer from that. Now the next part. Okay. The next part is we are sharing one PPT with you. Okay. Is it visible, everyone? Okay. So yeah. So see, I we are not telling all questions right now. See, this PPT consists of the same question bank which we had given to you 4 months before your prelim exam. So you already have these questions with you. But what we have done it here, we have done some highlighting of the questions which are very important for board exams. Like they have already appeared in the board exams. Like if suppose anyone has not studied solid state, but solid state if you wish to do, and you have very less amount of time. Okay, so what you can do, you can refer this highlighted part. Okay, and this is enough for the chapter. Okay. Yeah, we will be also sharing the question bank again into your group. So don't worry, there are many students who are messaging on the chat box कि सर फिर से क्वेश्चन बैंक भेजिए. आपको क्वेश्चन बैंक भी फिर से पूरा मिल जाएगा. आपको साथ साथ में ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगा. ओके, अभी आप पहले सिर्फ सुनो कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है. ओके, आपके ऊपर है. आपको ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक से करो. आपको इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करना है, इनऑर्गेनिक से करो. फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, फिजिकल केमिस्ट्री से करो. आपके लिए जो बेस्ट है, आपके मोमेंटम को रेज्ड अप करने के लिए आप वो फॉलो करो. Okay, I'm not reading all the questions, but I'm just showing you. Like this is solid state. These are the highlighted questions which you should do. जिसमें शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है, इसमें से आता ही है. ओके, एंड नेक्स्ट. या या जस्ट अ सेकेंड. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप फिजिक्स का पेपर तो अच्छा गया ही होगा, बट एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न कल का पेपर सुपर इजी है। ठीक है, आइडियली ऐसा देखा गया है कि अब तक इसी में इजी वाला पेपर है। लिखने में गड़बड़ ना करियो, कॉन्फिडेंस रखना, 2 से ढाई दिन का टाइम है अपने पास, बेटर तरीके से हो। ठीक है, यस जय जीसस। पर क्या हो, बेस्ट ऑफ लक गाइस। यस. सो कमिंग बैक टू दिस, किसी ने पूछा है कि सर क्या यही क्वेश्चन बैंक में से आएगा. तो ये क्वेश्चन बैंक ऐसे प्रिपेयर किया है कि यहाँ पे अगर ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपका पढ़ के हो जाता है. सो वी कैन से दैट कि इसमें से ही सब काफी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप यही प्रिपेयर करेंगे तो भी चलेगा. बिकॉज आपने एक्चुअली प्रिलिम्स में क्वेश्चन बैंक से प्रिपेयर किया है. So you already know this question bank properly. Okay, so I'm just showing you some highlighted questions. Okay, जैसे कि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, इंटरस्टिशियल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के एग्जांपल्स बोले, वो एग्जांपल्स एमसीक्यूज में आते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए. लाइक एफ सेंटर भी एमसीक्यू में आता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए वो हाईलाइट करके रखा है. फिर सोल्यूशन है, तो उसमें रॉल्स लॉ का डेरिवेशन है. फिर बाद में बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का एक एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ जाता है, तो वो आपको आना चाहिए. सब डेफिनेशन हाईलाइट करके रखा है. ओके, सो ये भी आपको
पता होना चाहिए। ओके, एंड देन आयोनिक इक्विलिब्रियम में ऑसवेल्ड डाइल्यूशन लॉ का 3 मार्क के लिए एग्जाम आता है। पीएच पीओएच का डिफाइन है, वो भी 1 मार्क के लिए आता है। ओके, एंड ऑल बफर सोल्यूशन का। सो आई एम नॉट रीडिंग एवरीथिंग, मैं सिर्फ आपको हाईलाइटेड पार्ट बता रहा हूँ। ओके, यस, आंशी का एक क्वेश्चन है कि सर ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें। तो न्यूमेरिकल्स में आपको एक ही चीज करनी है, जितने भी सॉल्ड एग्जाम्पल्स है, एवरी फॉर्मूला, एवरी चैप्टर हैज अ 5 to 6 formulas। सो एवरी फॉर्मूला पे दो दो सम सॉल्व एग्जांपल्स के देख लेने के, और साथ में टेक्स्ट बुक के पीछे के जो हमने क्लासरूम में सॉल्व किए, वो भी आपके नोट्स में से एक बार रेफर करो। आपका लॉगरिथम वीक है, एक बार लॉग कैलकुलेशन 1 या 2 सम का खुद से कैलकुलेट करके देखो, तो आपकी थोड़ी लॉग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्पेंड दैट 1 hour फॉर प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स प्रॉपरली। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस दिए थे, वो ही क्वेश्चंस आप रेफर करेंगे। पर ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन्होंने फ्रीक्वेंटली जो अभी तक बोर्ड में पूछा है वो ये क्वेश्चंस पूछे। लाइक मैंने एक यहाँ पे लिखा है, डेफिनेशन ऑफ ऑल 11 बोल्ड लेटर्स। तो आपको पता है हमने टेक्स्ट बुक में सब क्वेश्चंस रीड आउट किए थे, सब हमने बोल्ड लेटर के सब डेफिनेशंस लर्न किए थे। वो डेफिनेशंस कभी कभी 1 मार्क 2 मार्क के लिए आते हैं, तो यू शुड डू दैट पार्ट। ओके, हेस लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थर्मोडायनामिक्स। ओके, एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, किसी ने पूछे पूछा था कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़े। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलरूज लॉ है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन 2 मार्क के लिए आ जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो है 3 मार्क का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, लेड एक्यूमुलेटर सेल बैटरी। उसके रिएक्शंस पूछेंगे, डायग्राम के साथ पूछेंगे। अगर वो नहीं आया तो वो लोग ड्राई सेल के बारे में पूछेंगे। यू शुड डू दैट पार्ट। और अगर न्यूमेरिकल्स करना है ये चैप्टर में से, तो नर्न्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल करना। जो नर्न्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल है वो काफी ज्यादा पूछते हैं। फ्यूल सेल आर्यन, इट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक बार रेफर करना है तो करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत पढ़ो। आई एम गिविंग यू दैट हाईलाइटेड क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स। ओके, ओके, सो विच थ्री आई टोल्ड यू, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, ट्राई सेल, वो काफी इंपॉर्टेंट है। कॉलरूस लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करना है तो आर्हीनियस, सॉरी, नर्न्स्ट इक्वेशन का आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आना चाहिए। और वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो न्यूमेरिकल है वो भी अच्छे से आना चाहिए, ये 2 चैप्टर्स में। ओके, नेक्स्ट, हम लोग ने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन उन्होंने बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ये भी आप अच्छे से करना। ओके, एंड जैसे कि इसके सेल रिएक्शन मैंने लिखे हैं, आपके पास टाइम हो, अगर आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये सब पढ़ो। ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए है जिनको लग रहा है कि मेरा ये चैप्टर वीक है। तो अगर ये चैप्टर वीक है पर उसमें से इतने क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। ओके, आपको कोई भी चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना ही नहीं है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 मार्क के लिए आता है, काफी अच्छे से वो लोग पूछते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो जो व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका एग्जाम्पल्स काफी बार पूछते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन के टर्म्स है, वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज कभी कभी उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सम्स के फॉर्म में एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। या देखो, या गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप दैट आपका फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। टॉकिंग अबाउट केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में हमने 6 डिस्टिंग्विश पॉइंट्स लिखे थे, और अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें सिर्फ 3 डिस्टिंग्विश पॉइंट्स दिए हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप 6 के 6 पॉइंट्स है ना पढ़ के जाओ, और जो फर्स्ट 4 कॉन्फिडेंट पॉइंट्स हो आप वो पॉइंट्स एग्जाम्स में लिखोगे, ठीक है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी भी जब डिस्टिंग्विश आता है, ये आपको स्कूल लेवल में भी बताया गया था कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पॉइंट्स। ओके, तो हमने एक्सक्लूसिवली इसके 6 डिस्टिंग्विश पॉइंट्स लिखे थे, वो आपको लिखने हैं। जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स, आप जो पॉइंट्स पर कॉन्फिडेंट हो वो आप लिखोगे। देन ये जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो राज सर ने बताया वो एकदम आपको अच्छे से करके जाना है, और उसके 3 ही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन एसिडिक मीडियम। ओके, इसके और भी एग्जांपल्स है, बट गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक में जितने एग्जांपल्स दिए हैं हमें उतने ही एग्जांपल्स याद रखने हैं। और आपको याद होगा हमने ये लिखा भी था कि जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स होता है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, अगर वो अल्कलाइन मीडियम है तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा।
और दूसरा ये चैप्टर के आपको है ना सारे ग्राफ्स पढ़कर जाने हैं। ओके, फॉर अ 2 मार्क डिस्टिंग्विश दक्ष द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू शुड राइट इज 4। 4 पॉइंट्स अगर आप लिखते हो देन देर इज नो बडी इन द वर्ल्ड हु कैन कट योर मार्क्स। ओके, यस, आपको अलग अलग बुक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे डिस्टिंग्विश के, बट अगर आप 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स लिखते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड इन दिस चैप्टर यू नीड टू डू ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी टेक्स्ट बुक में ग्राफ्स है और जितने भी हमने नोट्स में किए हैं, सब ग्राफ्स को आपको प्रैक्टिस करना है। रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ का ग्राफ। ओके, देन फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉग 80 वर्सेस टी का ग्राफ, लॉग 10 ए नॉट बाई 80 वर्सेस टी का ग्राफ। बराबर है, क्योंकि वो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लॉग ए नॉट बाई 80 वर्सेस टी को प्लॉट किया है तो स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको याद रखना है बेस 10 रहेगा तो स्लोप क्या आएगा, और बेस ई रहेगा तो क्या स्लोप आएगा। ठीक है, देन फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं फ्रॉम एमसीक्यू कॉर्नर। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डीकम्पोजिशन है वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, तो इसमें हम हमारा इंटेलिजेंस यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने ये पढ़ा है तो ही आपको पता होगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, अगर आप बैलेंसिंग करने जाओगे तो H2O2 का वहां पे जो पावर मतलब कोइफिशिएंट है वो 2 आ रहा है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप सेकेंड ऑर्डर उसको लिख दोगे। ओके, pseudo order reaction में so they can ask you anything, they can ask you derivation or they can ask you examples of pseudo first order reaction। ठीक है, और जो हमने एक रिएक्शन किया था आपको याद होगा जहां पे फ्रैक्शनल ऑर्डर था, वो टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि एसिटाल्डिहाइड का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसका ऑर्डर 3/2 आता है। ओके, सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही सब आएगा एग्जाम में, बट दिस आर सम बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत रेयरली पूछे हैं बट एग्जाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और आर्हेनियस इक्वेशन का जो टेक्स्ट बुक के पीछे न्यूमेरिकल्स है वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि वहां पे जैसे सर ने बताया लॉग एंटी लॉग में आपको याद होगा हम एक जगह वहां पे अटक गए थे जहां पे वी हैड टू टेक नेगेटिव ऑफ एंटी लॉग, मतलब नेगेटिव नंबर का हमें एंटी लॉग लेना था। तो आपको पता है +1 -1 हम वहां पे करते थे। ओके, यस, हाँ, आपको जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है वो तो पढ़कर ही जाना है, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन। देखो, आप ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पढ़ रहे हो तो उसमें आपका मतलब डेफिनेशन जो है वो तो कवर हो ही जाएगा, ऑर्डर का डेफिनेशन, मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन। और ये चैप्टर से अगर डेरिवेशंस आपको करना है, सो द फर्स्ट डेरिवेशन दैट यू विल अटैक इज फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि या तो इसका डेरिवेशन पूछेंगे आपको 3 to 4 मार्क्स के लिए, या तो उसका न्यूमेरिकल आएगा। ओके, हाफ हाफ लाइफ से कनेक्ट करके पूछेंगे या तो डायरेक्टली रेट कांस्टेंट पूछ लेंगे। ठीक है, यू हैव एनी डाउट्स इन केमिकल काइनेटिक्स क्लास, और एल्स वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर देन। या आई थिंक वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। Yes. So the next, yeah, the next is P block chapter. In the P block chapter, the highlighted questions, if you see, there are only 3 to 4, 5 questions which you should learn. One is ionization enthalpy of group 15 greater than group 16. Anomalous behavior बहुत बार आता है 2 या 3 मार्क के लिए। और यहाँ पे नीचे ना यूजेस ऑफ हीलियम नियॉन आर्गॉन है, ये सब है ना लर्निंग वाले क्वेश्चन है, और ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर है जो सब पढ़ना है। अदर देन दैट, अगर रिएक्शंस किसी को 8 माइंड मैप अगर नहीं पढ़ना है अगर किसी को, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए, लाइक क्लोरीन का डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस 4 मार्क के लिए कभी कभी आता है, कभी कभी 3 मार्क के लिए आता है, उसके रिएक्शन आने ही चाहिए। SO2 का जिंक ब्लेंड के साथ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप पूछते हैं वो लोग। ओके, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया जेनॉन के रिएक्शंस आप करके जाना। ये बार जेनॉन के रिएक्शंस आने के चांसेस काफी ज्यादा है। आने के लिए त्रिशा, रिएक्शन में से मेरे 8 माइंड मैप जो है उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं,
पूछा तो एक ही क्वेश्चन पूछते हो उसके पूरे रिएक्शंस में से। तो इसमें ना ज्यादा आप टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते हो चलेगा, आप पूरा केमिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद आपको पी ब्लॉक के रिएक्शंस पे आना है। सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज इसमें आप अगर 2 घंटा डालोगे, इससे अच्छा आई वुड प्रेफर कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2 घंटा रिएक्शंस के लिए दे दो। बिकॉज इसमें से हार्डली 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 25-30 मार्क का आएगा। सो इट्स प्रेफर टू गो टू दैट। तो पी ब्लॉक में से वो लोग ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं जय, कि वो लोग थियोरी क्वेश्चंस पे करते हैं। ये एनॉमलेस बिहेवियर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फिर ये यूजेस ऑफ हीलियम है। तो आप उसके ऊर वो तो थियोरी क्वेश्चंस पढ़ लो, रिएक्शंस बाद में करने का। ओके, दैट्स अ स्ट्रैटेजी फॉर द पी ब्लॉक। और उसमें भी अगर टाइम नहीं मिलता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हाईलाइट किए वो करके जाना, उसमें से आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट विल गो विद द डीएनएफ ब्लॉक। तो डीएनएफ ब्लॉक में भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे साइड पे लिखा है एनॉमलेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 काफी इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट में जो लिखा है डिफाइन और मिनरल, 1-1 मार्क का क्वेश्चन आता है, 1-1 मार्क का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ओके, यू बेटर डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगा, तो यू कैन फॉलो द रिकॉर्डिंग, यू कैन सी इट लेटर। ओके, देन यहाँ पे अगर हम एफ ब्लॉक से बात करें, ओके, तो वहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर। कोऑर्डिनेशन में, जैसे कि सर विल टेल यू अबाउट कोऑर्डिनेशन। देखो, कोऑर्डिनेशन में इट्स अ हाई वेटेड चैप्टर आपके बोर्ड्स के लिए, एंट्रेंस के लिए भी। सो स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स कि लिगेंड्स क्या होता है। भले ही उसका डायरेक्ट डेफिनेशन आपको ना पूछे, बट अगर आप नोमेनक्लेचर करना चाहते हो, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, यू नीड टू नो द बेसिक डेफिनेशंस। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बाइडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल्स, ओके, जो इथिलीन डायमाइन है, ऑक्सालेट है, बेसिक यही दो आते हैं, तो उतने ही हमें करने हैं। ओके, देन नोमेनक्लेचर। ओके, आई थिंक ये हमने लेक्चर्स में भी बताया था कि नोमेनक्लेचर का एमसीक्यू में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, आइदर दे विल गिव यू द स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द आईयूपैक नेम, और दे कैन डू वाइस वर्सा, और व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गिव यू 3 questions. Okay, and you have to draw the formula, or you have to write the formulas for 3 marks. सो प्लीज डू नोमेनक्लेचर वेरी थरली। ओके, इसका एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ओके, विल कम टू द अदर टॉपिक्स ऑल्सो, विल कम टू द अदर टॉपिक्स ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद व्हेन वी कम टू आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और स्टीरियोमेरिज्म दो होता है ना। तो स्ट्रक्चरल तो बेसिक 4 जो उसके आइसोमेरिज्म्स है, उसमें सबसे ज्यादा लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का कंसेप्ट आता है। तो वहां पे आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का भी डेफिनेशन पढ़कर हो जाएगा, अगर आप लिंकेज आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ रहे हो तो। ओके, जो आपका स्टीरियोमेरिज्म है, ओके, उस पे ज्यादा आपको फोकस करना है, बिकॉज दे विल आस्क यू टू ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसके सिर्फ टेक्सचुअल स्ट्रक्चर्स को हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, उसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आने वाला है हमारे पेपर्स में। तो जितने हमने टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स किए हैं, जितने हमने क्लास में एग्जाम्पल्स किए हैं, वो ही आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो थ्री थ्री टॉपिक्स आर damn very important in this chapter. One is nomenclature, one is isomerism, and one is hybridization. ये 3 concepts को तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो इसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन पे जाओगे। देर आर 6 examples ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हमने किए थे, जो टेक्स्ट बुक में भी है, आपको उतने ही एग्जाम्पल्स करने हैं। अगर आप बुक बैक में देखोगे ना, तो देर वॉज वन मोर एग्जाम्पल, VCl4- का हाइब्रिडाइजेशन, वेनेडियम का। तो वो भी आपको करना है, बिकॉज सिंस इट्स अ टेक्सचुअल क्वेश्चन, इट कैन कम इन योर बोर्ड पेपर्स। सो इट मेक्स 7 questions फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप ये 7 क्वेश्चन कर लेते हो, तो देन you will get full marks in hybridization. The 3 most important topics, Anshi, are first of all nomenclature, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से 100% यू कैन टेक इट फ्रॉम अस, 100% क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं आपके पेपर्स। ठीक है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपको CFT में ऑक्टाहेड्रल
और टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग आना चाहिए। वो डायग्राम बनाने के लिए वो लोग पूछते हैं। और उसमें आपको याद होगा टेक्स्ट बुक में स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स में क्या होता है, वीक फिल लिगेंड्स में क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड्स के लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन डोनर्स है, नाइट्रोजन डोनर्स है, वो सिर्फ याद रखो आप। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केसेस एज सच बोर्ड एग्जाम्स में वो लोग नहीं पूछते हैं। ओके, हेलोजन डोनर्स, ऑक्सीजन डोनर्स, दे आर कंसिडर्ड एज वीक लिगेंड्स एटलीस्ट इन अवर एचएससी सिलेबस। ठीक है, तो इतना करना है आपको। फिर वर्नर्स थियरी के 4 पोस्टुलेट्स है, वो आपको वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखना है। इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स। ओके, नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के यूजेस। आपको याद होगा हमने ये किया था कि क्लोरोफिल में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ हार्ड वाटर का डिटेक्शन के लिए एडीटीए यूज होता है, यस कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस यू नीड टू नो। वंस अगेन आई एम रीइटरेटिंग, आपको नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। एंड पे अ गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन टू दिस चैप्टर एज वेल एज डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां से यू कैन हैव मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, यस इट इज इंपॉर्टेंट, ये आपने डीएनएफ में भी पढ़ा है और सॉलिड स्टेट के डिफेक्ट्स में भी पढ़ा है। सो यू जस्ट नीड टू राइट कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज आपको सॉलिड स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है, विल कम टू ऑर्गेनिक। ओंकार डोंट वरी, विल कम टू ऑर्गेनिक। दिव्या, यू नीड टू लर्न ऑल द यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बिकॉज एमसीक्यू में आया तो देन फिर क्या करेंगे हम। अगर थियरी में आया तो यू कैन राइट 3 to 4 यूजेस फॉर 2 मार्क्स। ओके, बट फ्रॉम एमसीक्यू कॉर्नर वो जो लास्ट पेज है वो आपको एकदम अच्छे से पढ़कर जाना है। ओके, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसका ज्यादा डिटेल्स आपको एचएससी सिलेबस में नहीं है त्रिशा। यू हैव इट इन योर नीट एंड जेई, सो विल कम टू दैट ऑल्सो। ओके, definitions you can write it in your own words provided that you cannot change the meaning of the definition। पर अगर कोई लॉ आ गया, जैसे हेस लॉ आ गया, कोरलॉफ लॉ आ गया, तो वर्ड टू वर्ड आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो आपको लिखना पड़ेगा। पर मान लो अगर मार्कोनिकॉव्स रूल आया तो यू कैन चेंज योर लैंग्वेज बट द कंसेप्ट शुड नॉट चेंज। बट फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई लॉ है तो वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक का ही आपको वो लिखना है। ठीक है, any other students, any doubts in this chapter coordination में? नो, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कम टू हेलोजन डेरिवेटिव्स। वी स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक नाउ। It's like, either you study completely or you don't study anything because everything is connected. But still we have tried our level best to give you the hot favorite questions of board exams। तो आपको एनएसआर सारे आने चाहिए अल्काइल हलाइड्स के, बिकॉज क्लास आपको भी पता है इसके बहुत सारे जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो अल्कोहल्स चैप्टर में भी आते ही है, जैसे अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है, अमोनोलाइसिस जो है वो अमाइंस में आता है। सो इट इज एनी वे गोइंग टू कम इन दिस चैप्टर और इन अदर ऑर्गेनिक चैप्टर्स। तो इसके जो 9 एनएसआर है जो हमने टेबल बनाया था वो आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ना है। ओके, यस राजवीर, यू नीड टू फोकस मोर ऑन टेक्स्ट बुक। आई थिंक ये हमने लास्ट 2 साल में आपको यही बोला है कि अपना जो गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक है और जो सारे टीचर्स के नोट्स है वही अपना भगवत गीता है, वही कुरान है, वही बाइबल है और वही ग्रंथ है, उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। MRN पार्क स्टैंड्स फॉर मार्कोनिकॉव्स रूल एंड पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट का दूसरा नाम पार्क इफेक्ट है। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी का एटलीस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी वगैरह सब क्या होता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज बीटा एलिमिनेशन। आई थिंक ये आपको पता होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस अल्कोहल्स में भी है, अमाइंस में भी है। तो समवेयर और द अदर दे कैन आस्क एलिमिनेशन रिएक्शन। Dehydrohalogenation is just one example of it। Okay, then you come to Lucas reagent। Lucas reagent is very 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 important class। आपको पता होगा इसका मैकेनिज्म भी है टेक्स्ट बुक में, जहां पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वो लूकास रिएजेंट वाला आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। एंड द नेम्ड रिएक्शंस, all the named reactions, whether it is word synthesis, Finkelstein, Schwartz, सारे named reactions अच्छे से देख कर जाना है। Okay, the more you study halogen derivatives, the less you will have to study for alcohols, phenols and amines। Okay, and uses में लास्ट में पूरा केमिस्ट्री होने के बाद
ओके, जस्ट गो थ्रू द यूजेस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। उसमें भी एक बार उन्होंने डीडीटी के साइड इफेक्ट्स पूछे थे बॉडी पर, और उसका स्ट्रक्चर में ये पूछा था कि हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन डीडीटी। तो हमने वो स्ट्रक्चर भी बनाया है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो जस्ट गो थ्रू इट। ओके, एनी डाउट्स इन हेलोजन डेरिवेटिव्स गाइस? Yes, we'll share this PDF on the group. We'll share all the important questions also. Don't worry. Okay, chalo, let's go on to alcohols, phenols, ethers. One of the most important MOPs is Grignard's reagent. Okay, आपको याद होगा वो टेबल में आपने बनाया था कि मिथेनॉल विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल एंड सो ऑन। तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। बोर्ड्स में आपको इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा। आप सीईटी में, जेई में, नीट में, बाकी एंट्रेंस एग्जाम में हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर फोकस करते थे। हियर यू हैव टू राइट द इंटरमीडिएट, उसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। यू हैव टू राइट इट एज इंटरमीडिएट और एडिटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है। देन LiLH4 आपको याद होगा, LiLH4 इज अ स्मार्ट एंड सिलेक्टिव रेड्यूसिंग एजेंट। तो उसके केसेस आपको पढ़ने हैं कि अगर रैनी निकल लिया अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड पे तो क्या होगा, LiLH4 लिया तो क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देन हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ना है आपको, एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ना है। एंड द लास्ट इज ऑक्सीडेशन। 1 2 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन क्या होता है। 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन हमारे बोर्ड्स में नहीं है, पर 1 और 2 डिग्री अल्कोहल्स का आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, लेट्स गो ऑन टू फिनॉल। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमओपीज इज कमर्शियल मेथड। तो आपको वेन एवर यू राइट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आपको हमने क्लास में भी बताया है कि आपको रिएक्टेंट का नाम, इंटरमीडिएट का अगर कुछ स्पेसिफिक नाम है तो वो, और जो मेजर प्रोडक्ट है एटलीस्ट उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। Yes, you can study from precise, you can study from the textbook, you can study from the class notes, you can study from the digest, सब में सेम ही है। wherever you are comfortable from, you can study, the chapters from those materials. Okay, yes, 21 Navneet is a good book if you are comfortable with that, well and good. Okay, then comes a Riemann-Timon reaction. Okay, Riemann-Timon and Kolbesch reaction, something very very important. ये हमने prelims में भी आपके पूछा था। In most of the prelims, Riemann-Timon and Kolbesch reaction was asked in our class prelims also, और ये important भी है। ठीक है, तो जो मेजर प्रोडक्ट है कि सेलिसाइल्डिहाइड कब बनता है, सेलिसाइलिक एसिड कब बनता है, आपको नेम्स के साथ पता होना चाहिए। ओके, देन फिनॉल का जो डिस्टिंग्विश है अल्कोहल के साथ, फेरिक फिनॉक्साइड वायलेट कलर बनाता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो आपको आना चाहिए, और बेसिक उसका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, yes, don't worry, we'll give you the study plan. Raj sir and I will give you the study plan. Don't worry about it. Okay, when we come to ethers, ethers में class as such ऐसा कुछ importance ऐसा नहीं है, because the chapter is, or the topic is very small, so you have to study each and everything in ethers, as you have very less part in ethers, but at least uses करके जाना। डाइथाइल ईथर के uses एक बार उन्होंने पूछे थे। Okay, organic questions, you can solve the textbook and you can solve PYQs. I think that is more than enough. If you study from Uttam, if you study from any other digest, reliable, Navneet, any book will do, provided that you are able to solve government state textbook questions and PYQs. Yes, target book is also good enough. Okay, चल, let's come to aldehydes, ketones. एंड आपको याद होगा जो बच्चों ने हमारा लास्ट वीक नेम्ड रिएक्शंस का सेशन अटेंड किया था, यू मस्ट हैव सीन दैट 70% ऑफ द सेशन वाज डेडिकेटेड टू दिस चैप्टर ओनली, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ नेम्ड रिएक्शंस। टेक इट फ्रॉम अस क्लास, जब मैंने, राज सर ने, बाकी टीचर्स ने अपना 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम्स दिया था, और जब ये चैप्टर्स थे हमारे सिलेबस में, हमारे टीचर्स ने भी हमको यही बोला था कि जो नेम्ड रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, conversions will come to all your questions class. Okay, just allow us to complete the flow of the important chapters and then we'll address all your questions. तो सारे नेम्ड रिएक्शंस पढ़कर जाने हैं along with their catalyst। अगर वहां पे कोई स्पेसिफिक कंडीशंस है, वहां पे कोई एक्सेप्शंस है, तो वो आपको पढ़ना है, जैसे रोजनमंस रिडक्शन, इटाज रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। ओके, आपको ये सब एकदम अच्छे से पढ़कर जाना है, बराबर है। ये इटाज रिएक्शन में आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि टेक्स्ट बुक में एरो पे 273 से 278 केल्विन दिया है, और थियरी में 273 से 283 दिया है।
तो इतना टेंशन नहीं लेना है। 273 से 278 लिखा तो भी राइट मिलेगा, 273 से 283 लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दोनों दिया है। ओके, बट जो टेक्स्ट बुक में दिया है स्टिक टू दोज कंडीशंस ओनली। और ये चैप्टर में हमने ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट नहीं किया है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नेम्ड रिएक्शंस ओनली। ओके, सो and aldol condensation, if I have to set the question paper, the first question that I will ask from this chapter will be aldol condensation or Cannizzaro reaction. So please do aldol condensation very thoroughly along with its theory. It can come for 4 marks, so 2 marks for the reaction and 2 marks for the theory. एकदम अच्छे से टेक्स्ट बुक का एकदम पूरा पढ़कर ही जाना है। देन बाकी नेम्ड रिएक्शंस जो है, क्लेमेंसन्स, वोल्फ केशनर रिडक्शन, दोनों में प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, मेथड्स आर डिफरेंट, वो आपको पढ़ना है। ओके, द टेस्ट फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, चाहे आपका टोलेंस टेस्ट हो, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो या शिफ्ट्स रिएजेंट, टेस्ट एकदम अच्छे से पढ़कर जाना। ओके, एक अल्कोहल और फिनॉल का टेस्ट था, एक अल्डिहाइड और कीटोन्स का टेस्ट है, फिर कीटोन्स के डिटेक्शन के लिए भी जो रेड कलर वाला टेस्ट है वो भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, एंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स यू कैन स्टडी, यू हैव टू स्टडी एसिडिक नेचर, वहां पे टेक्स्ट बुक में दिया है व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। तो ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। रिगार्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में यू हैव टू डू प्रिपरेशन फ्रॉम अल्डिहाइड्स, जैसे उनका ऑक्सीडेशन, देन साइनाइड्स का हाइड्रोलाइसिस, alcohols का oxidation, and one more method of preparation, that is oxidation of aromatic compounds. Okay, if any student is able to recollect, just type it in the chat box. आपको याद है ये सब आपने किया था कि टोलुइन का ऑक्सीडेशन करना है, देन क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करना है, इथाइल बेंजीन का करना है, साइक्लोहेक्सिन का करना है, स्टाइरिन का करना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यस, KMnO4 अल्कलाइन मीडियम है, तो वो अच्छे से करके जाना है। बराबर है ये? एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर गाइस? No. Great. So let's go on to the next chapter, that is amines. Amines is relatively a smaller chapter as compared to aldehydes, ketones. The first two reactions you will study in this chapter will be Gabriel thalamide synthesis and Hofmann's degradation, Hofmann's bromomide degradation. Very, very important from this chapter. अगर मान लो इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेरे पास सिर्फ 5 ही मिनट है और मैंने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो आई विल स्टडी दिस टू रिएक्शंस फर्स्ट। ओके, आई रिपीट, इट इज Gabriel thalamide synthesis and Hofmann's bromomide degradation. बराबर है? And then you will go on to the named reactions like Mendes reduction और Hofmann's के सारे reactions, चाहे वो एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन हो, अल्काइलेशन हो, कार्बाइल अमाइन हो, वो सब आपको पढ़ना है। देन टेस्ट, जैसे हमने डिस्कस किया, टेस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिनॉल का टेस्ट है, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का डिस्टिंग्विश टेस्ट है, और ये हिंसबर्ग टेस्ट है, तो हिंसबर्ग टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, बेसिक आपको 4 अमाइंस दे देंगे, बोलेंगे कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, और आपको है ना ये याद रखना है कि जो हमने सिलेक्टिव ESR किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मान लो एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए, तो आपको पता है पहले वो असाइलेशन करते हैं बाद में हेलोजिनेशन करते हैं। ओके, विल लेट यू नो रिगार्डिंग द वेटेज ऑल्सो, डोंट वरी। और आपको ये याद रखना है कि एनिलीन का जो नाइट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको याद होगा उसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, तो वो सब आपको टेक्स्ट बुक से रीजंस भी पढ़ने हैं कि क्यों मेटा प्रोडक्ट बनता है, क्या रीजन रहेगा उसका। ओके, इट कैन कम फॉर 2 marks. ओके, एनी अदर डाउट्स गाइस इन अमाइंस चैप्टर? नो? ओके, ओके, let's go on to biomolecules. Sir will explain you regarding the biomolecules. Okay. For the biomolecules, most important is the structure of sucrose, maltose, lactose, okay, which comes for drawing only. That's why it is written only drawing. And do all the reactions of glucose, which proves the structure of glucose. Okay, we have written it into our notes also. And in proteins, the IUPAC part, they don't ask in board exam. So if you don't do IUPAC of proteins, amino acids, absolutely fine. For you have to remember note of Zwitter ion, they have asked many a times.
Denaturation of proteins also they ask for 2 marks. And the most important distinguished from biomolecules is globular proteins and fibrous proteins. And if they want to ask a 3-mark question, then they do ask the writer note on secondary structure of proteins. In that also they become a little specific in 2-mark question. Either they will ask alpha helix और they'll ask बीटा प्लेटेड शीट. ये दोनों में से एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. और डीएनए वाले सेक्शन में आपको प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स के स्ट्रक्चर्स आने चाहिए. ओके और वो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनाते हैं. ओके वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए. वो कभी कभी 1 मार्क के लिए आता है अबाउट बायोमोलिक्यूल्स. ओके बायोमोलिक्यूल्स में कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं करने हैं बिकॉज ऐसा कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए है ही नहीं. ओके जिनको लग रहा है ओमकार के चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है, देन आर सजेशन इज डोंट लीव इट इन ऑप्शन. आपको स्ट्रक्चर नहीं आते, थियरी क्वेश्चन पढ़ो. ग्लोबुलर प्रोटीन्स फाइब्रस प्रोटीन्स थियरी पढ़ो. अल्फा हेलिक्स थियरी है. ओके हेवर्थ और फिशर के स्ट्रक्चर क्रीमजी मैंने यहाँ लिखा ही है कि रिएक्ट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज बनाओगे तो उसमें हेवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ ही जाएगा. अल्फा डी ग्लूकोपैरेनोज है, बीटा डी ग्लूकोपैरेनोज है, सब आ ही जाएगा. सो अगर आप सिर्फ सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज कर रहे हो तो उसमें स्ट्रक्चर आ ही रहा है. ओके सो अगर इतना इतना हाईलाइटेड क्वेश्चंस भी कर लिया देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस चैप्टर. ओके देन इट इज पॉलीमर्स. हाँ सो देखो पॉलीमर्स में एज एज यू नो दैट इट्स अ वेरी लाइट वेट चैप्टर. सो बेसिक क्वेश्चंस आपको करने हैं जैसे नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 टेरिलीन. ओके पहले तो आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह सब आना चाहिए. बट इन द वर्स्ट केस इवन इफ यू फॉरगेट द स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट लर्न द नेम ऑफ द रॉ मटेरियल्स मोनोमर्स दैट आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ओवर हियर. ओके यस हाँ बायोमोलिक्यूल्स के सारे रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं नकुल. ग्लूकोज के सारे रिएक्शंस पढ़ने हैं. ओके फिर यहाँ पे आपको थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग का डिस्टिंग्विश जो हमने क्लास में लिखा था वो पढ़ना है. 4 points आर सफिशिएंट टू गेट 2 marks. ओके प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड if you feel that they are very difficult structures, okay you can do it towards the end of the entire chapter, but you can finish off the smaller questions like theory questions की वल्कनाइजेशन क्या होता है, टेफ्लॉन के यूजेस, टेफ्लॉन का प्रिपरेशन, ओरलॉन का प्रिपरेशन, एचडीपी एलडीपी का बेसिक डिस्टिंग्विश आप पढ़ सकते हो. उसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी है तो यू कैन डू दिस. ओके यस आंशी देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि अगर वो पीवाईक्यू में आया तो 2025 में भी आएगा. But yes, the probability will be more of such questions being getting asked in exam. देखो पूछने के लिए तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं. But that does not mean कि एकदम ही पेपर haywire आएगा. If you do this, at least majority of the questions you will be able to solve with great comfortness. Uh, yes, there are certain reactions in organic जहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कर रहे हो तो 413 पे क्या हो रहा है और 443 पे क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए. पर अगर ऐसा कोई रिएक्शन है जहां पे आपको टेम्परेचर के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सो इट इज अवर रिक्वेस्ट टू यू कि डोंट राइट एनी फॉल्टी टेम्परेचर्स. यू कैन राइट एट अ सुटेबल टेम्परेचर. इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड राइटिंग एग्जैक्ट टेम्परेचर इफ वी डोंट नो, इफ वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ इट. ओके ठीक है या ज्यादा आउट ऑफ बॉक्स नहीं आएगा. पेपर विल बी वेरी स्टैंडर्ड सो आपको टेंशन नहीं लेना. ठीक है ग्रीन केमिस्ट्री में बेसिक बेसिक सारे जो 12 प्रिंसिपल्स है वो सिर्फ एक बार पढ़ के जाना. उसके अंदर का कंसेप्ट आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, सिर्फ आपको वो हेडर्स पता होना चाहिए. एंड बेसिक डेफिनेशंस एटम इकोनॉमी क्या होता है उसका कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं बेसिक अगर आया तो 1 mark के लिए वो लोग पूछ सकते हैं. इसमें सिर्फ थियरी आएगा कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है वो बताओ, उसके एडवांटेजेस बताओ. ओके नैनो पार्टिकल्स का कलर अलग अलग और उसके प्रॉपर्टीज जो हमने किया था ना, सरफेस एरिया है, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी है. बेसिक पढ़ना है ज्यादा कुछ नहीं. सॉल्व जेल प्रोसेस इट्स लिटिल टीडियस सो डू इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है लास्ट में इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स. ओके ओके रौनक सर हो और मोदी जी ना आए वैसा तो हो नहीं सकता. तो लोटस कमल के बारे में आपको पढ़कर जाना ही है. एक छोटा सा पैराग्राफ उन्होंने दिया है वो पढ़कर जाना है. बेसिक है, इजी है, एक बार पढ़ोगे आपका इजीली वो पढ़कर हो जाएगा. बराबर है ये. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स दैट वी हैव टेकन? इफ नो देन सर कैन गिव यू द एंटायर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 2.5 days. पीवाई क्यूज यस, अगर आप पीवाई क्यू कर रहे हो तो उसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कवर हो ही जाएंगे.
So don't worry about it. Okay. And we just got, messages from students के, बाकी पेपर्स में तो बच्चे कॉपी कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो हम तो कॉपी नहीं कर रहे, तो हमारा मार्क्स कम हो जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इट इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सीईटी, जेई, नीट, जहां पे अगर आपका एक मार्क कम आएगा तो आपका एडमिशन नहीं जाएगा. एंड इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट इज अबाउट एथिक्स. जिनको कॉपी करना है उनको करने दो. Please do not indulge in any faulty practices of copying, because we have got messages from students कि वो लोग पकड़ते नहीं है तो क्या हम भी कॉपी करें. तो प्लीज डोंट इंडल्ज इन ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. सर विल ट्रेवल्स यू टू द एंटायर प्लान ऑफ नेक्स्ट 2.5 days. Few students are asking that textbook reading is important. If you get time, you read for few chapters. But if you don't get time, it is fine if you do just important questions which have been given by us. Okay. And if you think, sir, I just want to do PYQs of green chemistry, PYQs of polymer chapter, biomolecules, it's fine. It has been covered. PYQ और हमने जितना बताया उतना questions भी अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा. It's absolutely fine. अब ये 2.5 days में पूरा केमिस्ट्री कैसे पढ़े? दैट्स अ मेन क्वेश्चन फॉर एवरीवन. ओके, सो हम लोग ने ये रखा है कि आज मंडे है, तो हमने 6 o'clock से, अभी 5 o'clock हुआ है, 5 हुआ है, तो 6 o'clock से स्टार्ट करना है. तो लाइक वहां पे 6 to 7 1 चैप्टर लिखा है, कौन सा भी कोई चैप्टर. ऐसा नहीं बोलो कि फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट जाके पढ़ो. जो भी आपको फ्लो रखना है चैप्टर्स का वो आप फ्लो रख सकते हैं. 6 to 8 के बीच में 2 चैप्टर्स होना चाहिए. ब्रेक है, अगेन ब्रेक के बाद 15 मिनट के ब्रेक के बाद वापस 1 घंटे में एक और चैप्टर होना चाहिए. फिर डिनर ब्रेक है आधे घंटे का. 10 to 11 में फोर्थ चैप्टर होना चाहिए. यू कैन डू. आज अगर आप टायर्ड हो तो ये चैप्टर 4 कैन बी योर ग्रीन केमिस्ट्री, कैन बी योर स्मॉल चैप्टर, कैन बी योर पॉलीमर्स, कैन बी एनी स्मॉल चैप्टर विच यू आर कंफर्टेबल विद इट. ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट डे. तो नेक्स्ट डे अगर आप स्केड्यूल देखेंगे तो स्केड्यूल में 7 o'clock से जो हमारे क्लासेस का टाइम टेबल है हमने वो फॉलो किया है. 8 to 9:30 है, वो एक चैप्टर के लिए बड़ा चैप्टर है. 9:45 to 11:15 अगेन दूसरा बड़ा चैप्टर है. फिर अगेन ब्रेक है, अगेन 11:30 to 1:30 तीसरा बड़ा चैप्टर है. तो बड़े बड़े चैप्टर सुबह को लेना है जस्ट बिकॉज हम वहां पे फ्रेश है इसलिए. ओके, एंड देन लंच ब्रेक है, फिर रेस्ट है. 1:30 से 4 रेस्ट है. 4:30 से 5:30 अगेन अ न्यू चैप्टर एंड अगेन अ टी ब्रेक एंड फिर 6 o'clock onwards you can continue. Okay, so एक मिनट. ओके, सो दिस इज द थिंग जो अभी मैंने स्केड्यूल बताया वही है. रेस्ट के बाद 4:30 to 5:30 अगेन अ चैप्टर. अगर आप यही चीज फॉलो करते हो, यही प्रॉपरली फॉलो करोगे, आपके 16 के 16 चैप्टर्स हो जाएंगे. कहाँ टी ब्रेक है, कहाँ डिनर ब्रेक है, आप सिर्फ ये फॉलो करो. डोंट बी इन अ पैनिक मोड कि सर मेरा ये बाकी है वो बाकी है. आपके पास 2 दिन है. आप जैसे ही बोला गया है वैसे फॉलो करेंगे तो आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ के तो हो जाएगा. पर साथ साथ में 6 o'clock से मैंने रिविजन लिखा है. हर बच्चे को 8 से 10 घंटा रिवीजन के लिए लगेगा. तो किसी का टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं भी हो रहा है तो भी उसको 5 से 6 घंटे रिवीजन के लिए मिलेंगे. सो अगर रिवीजन अगर आप कर रहे हो, सो इट इज इजी. कि रिवीजन क्यों करना है? बिकॉज जो आपने मंडे को आज जो पढ़ा है वो आपको वेनेसडे तक याद रखने के लिए एक बार फिर से गो थ्रू करना पड़ेगा. तो रिवीजन के लिए टाइम रखो. और जैसे ही आप सुबह को जाते हो, जैसे कि हमारा जो 20th Feb का है, तो वहां पे ना आप 1 घंटा 2 घंटा ऑर्गेनिक रिवाइज करो. वहां पे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो भूलने के चांसेस होते हैं कभी कभी छोटे छोटे रिएजेंट्स के लिए. तो आपका एंड का रिवीजन ऑर्गेनिक होना चाहिए. ओके, सो दैट यू स्कोर वेरी वेल इन ऑर्गेनिक ऑल्सो. ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड. ओके, एंड हमने एंड में लिखा है कि आपका लास्ट पार्ट में रिवीजन उसका होना चाहिए जो आपके लिए वीक है. आपको लग रहा है कि मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीक है, डू रिवीजन. आपको लग रहा है कि मेरे ये नहीं रिएक्शन में वीक है, डू डू दैट. आपको लग रहा है योर स्मॉल चैप्टर्स आर वीक, बायोमोलिक्यूल इज वीक, देन डू बायोमोलिक्यूल्स. इट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड आपको क्या करना है. ओके, फॉलो दिस स्केड्यूल. आपका 100% 2 दिन में पूरा केमिस्ट्री पढ़ के हो जाएगा. Okay, so lastly, I also want to call Sandeep sir. He also want to share few things with you. So I'll unmute Sandeep sir. Sandeep sir. I think Sandeep sir is not there. I'll just tell Ronak sir to give you the last minute words from our side. देखो, आई थिंक आप लोगों ने 2 साल तो अभी पढ़ाई किया ही है.
just have faith in your preparations. We'll post the availability of all the teachers, all the chem teachers on the group. Okay, you can come for doubt solving anytime. Just check the availability of the teachers. We'll post on the group. Just today also, if you want to come for any doubt solving, you can come. I'm here till 8 p.m. at the class, and for the rest of the days, we'll post our availability on the teachers on your students group. दूसरा, जब आप पेपर देने जाओ, प्लीज मेक श्योर दैट आप पूरा पेपर कंप्लीट करो। ओके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 3 मार्क का, मुझे वो चैप्टर का वो क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आता है, बट एटलीस्ट वो चैप्टर का मुझे कुछ तो आया होगा। जैसे राज सर ने बोला कि अगर आप कोई चैप्टर छोड़ना चाहते हो तो वो छोड़ो मत, एटलीस्ट जो सर ने हाईलाइटेड पार्ट किया है हर एक चैप्टर के लिए वो आप पढ़कर जाओ। बराबर है ये? तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट समथिंग। और जैसे आपको फिजिक्स में भी बोला था कि द एग्जामिनर जो वहां पे है, दे आर ओवर देयर जस्ट टू गिव यू मार्क्स। पर अगर आप पेपर भरोगे, इफ दे सी दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स, देन दे विल क्रेडिट यू विथ मार्क्स। सो प्लीज डरने की कोई बात नहीं है। यू कैन से दैट पेपर लीक हो गया है, जो सारे टीचर्स ने अभी आपको यहाँ पे पीपीटी में बताया, उतना आप अच्छे से करो। गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स वो आपको अच्छे से पढ़ना है। See, as we have told you, you can study from Navneet, you can study from Precise, you can study from class notes, कहीं से भी पढ़ो, wherever you are comfortable, provided that you are able to solve the government state textbook questions and the PYQs. अगेन आई एम रिट्रेटिंग माई सेल्फ, पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है। जहां पे ऑप्शंस है और पेपर खत्म होने के बाद आपके पास टाइम है, प्लीज अटेम्प्ट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो। मान लो जैसे आपको जहां पे 2-2 मार्क के क्वेश्चंस है, एनी 8 आउट ऑफ 12 अटेम्प्ट करने होते हैं, आपने 8 अटेम्प्ट कर दिए, पूरा पेपर खत्म हो गया, आपने प्रॉपरली गो थ्रू भी कर लिया पेपर को, और आपके पास टाइम है, प्लीज अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हु नोज, शायद आपका 2 मार्क का कुछ न्यूमेरिकल रॉन्ग गया हो, तो इट कैन बी कवर्ड बाय एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और बेस्ट ऑफ 8 आपको मिलेगा। और जैसे आपको फिजिक्स में भी बोला था, हर एक क्वेश्चन में राउंड ऑफ होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 7.5 आया है, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, वो 8 हो जाएगा। सो यू हैव टू लुक फॉर सच हाफ ऑफ मार्क्स। जैसे मान लो न्यूमेरिकल्स में हम क्या करते थे, हमको भी यही सिखाया गया था कि अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो एटलीस्ट गिवन लिखो, टू प्रूव या टू फाइंड, जो भी फाइंड करना है, कुछ तो फॉर्मूला लिखो। भले ही नॉट्स इक्वेशन का उन्होंने पूछा है और आप लिख रहे हो गिब्स फ्री एनर्जी का, चलेगा, मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट समथिंग कॉन्क्रीट रादर देन लीविंग दैट क्वेश्चन। ओके, दैट डज नॉट मीन कि हम कुछ भी एब्सर्ड लिखेंगे, बट रिलेटेड टू द टॉपिक लिखना है। बराबर है? एग्जामिनर को लगना चाहिए कि भाई आपने एफर्ट्स डाले। सी, इफ आई एम करेक्टिंग द पेपर, मैं अगर देखता हूं कि बच्चे ने चलो कुछ तो एफर्ट्स डाले, तो मैं उसको हाफ मार्क दे दूंगा वहां पे। और ये हाफ ऑफ मार्क तो वैसे भी राउंड ऑफ ही होने वाले हैं। सो थिंक फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो, कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जैसे आपको फिजिक्स में भी बोला गया था, एमसीक्यूज तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, यू डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो एमसीक्यूज तो सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से पहले गो थ्रू करो कि क्या आ रहा है आंसर, और लास्ट में उसका एमसीक्यू का आंसर लिखना है। और पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करना। ओके, स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस वेयर यू आर मोर कॉन्फिडेंट। दिस इज अ जनरल थिंग, ये आपने 10th में भी फॉलो किया होगा। पेपर मिलने के 5 से 7 मिनट बाद आप पूरा गो थ्रू करो पेपर को, फाइंड आउट वेयर यू आर मोस्ट कंफर्टेबल एंड स्टार्ट दैट क्वेश्चन वेर यू आर मोर कॉन्फिडेंट। दिस इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ और शुरू के सारे क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं, सो इट गिव्स दैट पॉजिटिव एडवांटेज टू दैट स्टूडेंट। विजा विज अगर स्टार्टिंग में ही 3-4 क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस वही अगर रॉन्ग हो गए, तो देन इट गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन, इट फील्स दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉन्फिडेंट। हाँ, यस, जो 1 आवर आपको यहाँ पे बोला गया है, ऑब्वियसली देखो, नॉर्मली लेक्चर्स में तो आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोकेम कैसे पढ़ना है, आयोनिक कैसे पढ़ना है, सॉल्यूशंस कैसे पढ़ना है, अल्डिहाइड्स कीटोन्स कैसे पढ़ना है। सो यू स्टडी इन द सेम वे एंड देन सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द हाईलाइटेड क्वेश्चंस एंड द गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, तो इजीली हो जाएगा, है ना। और जैसे सर ने आपको बताया, फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में 5 से 6 फॉर्मूलाज ही है, तो हर एक फॉर्मूला पे 2-2 क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटफट। एक क्वेश्चन आप देख कर सॉल्व कर सकते हो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, और वही टाइप का दूसरा क्वेश्चन खुद से करो, लॉग और एंटी लॉग लेकर, सो दैट दैट विल गिव यू मच नीडेड कॉन्फिडेंस।
व्हेन टू सॉल्व प्रीवियस पेपर क्वेश्चंस, देखो जैसे ऑर्गेनिक का आप कर रहे हो, तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो उसी वक्त आप क्वेश्चंस पीवाईक्यूज का कर सकते हो। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक में चैप्टर आपका पढ़कर हो गया, देन सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस और नॉट। ओके। रिविजन में इट इज डिपेंडिंग फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। आई लाइक टू रिवाइज ऑर्गेनिक बाय प्रैक्टिसिंग। ओके। फिजिकल प्रैक्टिस करना है तो न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करने के लिए सारा फॉर्मूला शीट आपके पास होना चाहिए। ओके। पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज और गवर्नमेंट स्टेट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। हाँ। there is no technique for studying a chapter just one day before the exam। तो जितना आपने पढ़ा है, have faith in your preparations। once again we are reiterating, complete the entire paper। पूरा पेपर भर के आओ, पेपर इजी ही आने वाला है। बराबर है ये? ठीक है। डेरिवेशंस नोट्स में से करना है। only precise reading, yeah, you can study from precise Pankti, if you are confident that you are understanding from there, you can study from precise, but see to it that you are doing PYQs and STB questions also। yes, obviously if you write the paper well, you can get 100 on 100। I think sir Pearl Yes. yes, Pearl had got, one of our ex students, NEET topper, she had got 100 on 100 in boards। uh, P block is actually 6 to 8 marks chapter. Okay, but as I said, you should focus more on theory part. And if you finish theory part, you finish organic. Once you finish all chemistry part, then you can go to the reactions part if you get time. If you don't get time for reactions, focus on the important reactions highlighted in the PPT. Now, just we are ending the session. We almost finished with our instruction. If you still have any questions, you can message me personally. You can message all any teacher, any chemistry teachers. We are available for you. Okay, and we'll be sharing this PPT into your group for your reference, and we'll be also sharing the question bank which we have sent it 4 months before. Okay, okay. So all the best for it. Make your preparation harder. Don't waste time and make yourself proud. चलो, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट अटेम्प्ट द पेपर एज एज इफ यू आर अटेम्प्टिंग योर क्लासेस प्रीलिम्स। पेपर लीक हो चुका है, उतना ही आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। टेक्स्ट बुक पढ़ो, प्रिसाइज से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट डू ऑल द पीवाईक्यूज एंड बी कॉन्फिडेंट। पॉजिटिव अप्रोच रखो, जैसे प्रतीक सर बोलते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखना एग्जाम के दिन, कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से एग्जाम में आएगा। and we all are sure that you will do wonders in chemistry paper। ठीक है। with this we close the session, we'll share this PPT, we'll share the recordings, and we'll let you know the availability of all the teachers day wise also, so you can come for your doubt solving। ठीक है। चलो, bye guys, all the best Bye. and prepare well। Yeah. Through it.